Students, would you please acknowledge that it is audible and visible properly? Yes, sir. Okay. Now, students, what we are going to do today, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? We would be going through some transactions. We would be going through some transactions that is very common or very often it is used to ask in double column cash. Okay, so I would be preferring here the NCERT transactions. Meanwhile, if you are finding some transaction in your book, so that also you can just tell me. Okay? So let's start. Taking any transactions. If you are finding any transactions, what is difficult for you in double column case book while practicing the questions, so that also you can ask. And we are also going to discuss some transactions over here. Okay, so let's see. So first of all, see, if it is given, then so no problem, interest allowed or interest received. If interest allowed or interest received is written, so that is the fine. Beside this, sometimes what happen, it is written like interest. Hopefully, when it is not given, so at least they will write interest debit or interest credit. All right. So if it is written interest debit, that means you can understand whether it is interest allowed or interest received, right? Or if it is written interest CR, that means you can understand what does it mean. That's it. So these are the things. देखो, generally interest on bank, whenever it is written interest on bank, so always consider interest received. Well, there is no any hard and fast rule, but this in a positive sense we can understand that we would be having a favorable balance in the bank. We would be having the favorable balance in the bank and we would be receiving the interest on it. All right. Unless until it is clearly नहीं, करंट अकाउंट में मिलता है इंटरेस्ट, किसने कहा नहीं मिलता है ना? नहीं, करंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन करंट अकाउंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है ना? क्योंकि उसमें जो टेन्योर होता है ना, वो बहुत ज्यादा आप मतलब कि कभी भी इसको प्रैक्टिकली समझे, कभी आपका बैंक में जाने का काम पड़े या फिर whenever we would be having the bank visit or something, है ना? करंट अकाउंट पर भी इंटरेस्ट होता है, बट उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम होता है ना? वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, ठीक है? सो मतलब कि अगर if it is written कि interest on the current account, so the same thing is there, interest on the current account, ठीक है? If it is considering the favorable balance, we can consider the interest received, and clearly if it is given, yes, overdraft is there or the credit balance is there, or debit balance is there as per the bank. So that what happened, we would be considering it interest allowed. ठीक है? So और मैंने आपको एक कल परसों आई थिंक शायद क्लास में आपको बताया था कि when no information is there, so accountancy is a generally accepted accounting means based on the generally accepted accounting principle. It's the main subject. If anything is not clear, देखो, trust me, whether it has been interpreted in the wrong way, अगर उसको गलत तरीके से, actually nothing wrong in right. Let me tell you, in accounts, there is nothing right. Just try to understand. Okay, there is nothing right or wrong. Actually, it may be treated a debit or a credit. So how did you treat it? How do you interpret it?
आपने उसको इंटरप्रिटेट कैसे किया है। अगर आपने उसको डिफरेंटली इंटरप्रिटेट कर लिया है देन डेफिनेटली देयर वुड बी अ डिफरेंट ट्रीटमेंट, है ना। आपका अगर आपने इंटरेस्ट अलाउड को इंटरेस्ट रिसीव्ड भी मान लिया, है ना, इफ इट इज रिटन ओनली इंटरेस्ट, सो मे बी एक क्वेश्चन में जब दे रखा है तो उसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है कि इट इज इंटरेस्ट अलाउड, it is interest allowed, but wrongly you have treated it interest received, then what will happen? Again the debit and credit, instead of cash debited, cash credited, instead of interest debited, it is credited. So there would not be any difference in the trial balance. Debit would be always equal to credit, and when you are having the equal balance at the end or equal total at the end, so the evaluator, those who is checking, those who are checking your copy, he understands the student has given the right effect, uses the right rules of debits and credit, and follows all the accounting process properly, but maybe one or two things are being treated inappropriately. That's why this differences arises. बट मैंने आपको इसके पहले भी बताया था नमन कि जब एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, देखिए ये प्रॉब्लम्स आती हैं बुक में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, तो ये प्रॉब्लम जनरली आती है एनसीईआरटी में हो जाता है, कभी कभी रेफरेंस में भी इस तरह की चीजें आ जाती है, लेकिन व्हेनेवर इट इज अ मैटर ऑफ असेसमेंट, प्लीज डू अंडरस्टैंड, जब भी असेसमेंट का मैटर होता है, एग्जामिनेशन का मैटर होता है, तो जो क्वेश्चन आता है ना बेटा आपके सामने, वो एक कंप्लीट क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन को आपसे पहले आपको सर्व करने से पहले सॉल्व कर लिया जाता है, तो उसमें जो जो भी पॉसिबल एरर्स होती है उसको ऑलरेडी फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये समझना है हमें कि उसमें आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि अगर एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे, तो एग्जाम में जनरली इस तरह से इनकम्प्लीट स्टेटमेंट या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स एग्जामिनेशन में नहीं आते। होपफुली दिस इज क्लियर नमन। सर मुझे एक डाउट है सर। हाँ जी बेटा बोलिए प्लीज, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। हाँ सर हमें मतलब जो ये जीएसटी होता है ये हमको ट्रेड डिस्काउंट के बाद लगाना है और कैश डिस्काउंट से पहले लगाना है, ऐसा है? हाँ बिल्कुल। तो मतलब जीएसटी हमने किसी पर्टिकुलर प्राइस में जीएसटी हमने ऐड कर दिया, फिर वो एडिशन जो लाया उस पे हमको कैश डिस्काउंट लगाना है, या फिर जो ट्रेड डिस्काउंट के बाद प्राइस निकली उस पे वो कैश डिस्काउंट लगाना है? नहीं नहीं, देखो एक तो सिंपल सा आंसर है इसका, है ना, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे दिया है आपको, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। इसको आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लो कि आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट लगाना है, फिर जीएसटी लगाना है और फिर कैश डिस्काउंट ऑफर करना है, ठीक है। तो मतलब वो जीएसटी को हमें रियल प्राइस में ऐड करना है, फिर उस पे कैश डिस्काउंट लगाना है, ऐसा? क्योंकि कैश डिस्काउंट आप दे रहे हो, है ना, कैश डिस्काउंट अगर एक बिजनेसमैन इज ऑफरिंग कैश डिस्काउंट टू द पार्टी, टू द कस्टमर और टू द कंज्यूमर, ये उस बिजनेसमैन और उस कंज्यूमर के बीच पे की अंडरस्टैंडिंग है कि वन इज ऑफरिंग द डिस्काउंट, ठीक है। अब आप हाँ नहीं नहीं पहले सुन लो एक मिनट के लिए, देखो सिंपल सी बात है बेटा, है ना, समझो आप एक बात कि मैंने भाई एक लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, है ना, गुड्स मैंने 1 लाख रुपए का परचेज किया है और उसको मैं 2 लाख रुपए में अपने कस्टमर को सेल कर रहा हूँ, ठीक है। अब उसके ऊपर मैंने कस्टमर को मतलब रिटेलर को मैं सेल कर रहा हूँ सपोज, तो मैंने उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगा दिया, ट्रेड डिस्काउंट लगा करके फिर उस पर मैंने जीएसटी लगाया, जीएसटी लगाने के बाद में अपने कस्टमर को इंप्रेस करने के लिए या उससे रिलेशन बनाने के लिए या फिर उससे फेवर लेने के लिए मैंने उसको 5000 का केस डिस्काउंट दे दिया। तो देखो ये मेरे और उस बिजनेसमैन के बीच का अंडरस्टैंडिंग है कि आई एम ऑफरिंग हिम केस डिस्काउंट, है ना। तो इसके कारण से मतलब कि मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरे रिलेशंस के लिए गवर्नमेंट क्यों सफर करेगी भाई, समझ में आ रही है बात आपको। गवर्नमेंट को तो उस पूरे अमाउंट के ऊपर जितने का आपने खरीदा और जितने का आपने बेचा उसके पूरे अमाउंट के ऊपर टैक्स चाहिए। अब आप उस पर कितना केस डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, है ना, कितना रिलेशन मेंटेन कर रहे हो, ये आपके आपस के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। तो प्रैक्टिकली समझो इसको, वैसे तो आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका 1 मिनट में आंसर ये आ जाता है कि भाई पहले जो भी परचेज है अपना, परचेज है या सेल है ना, तो परचेज या सेल है तो वो उसका ओरिजिनल प्राइस है 1 लाख रुपीस, अब उसमें मान लीजिए 20% ट्रेड डिस्काउंट है तो लेस टीडी एट द रेट ऑफ 20%, तो
कितना हो गया 20,000 का ट्रेड डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, ओरिजिनल प्राइस इसकी बची 80,000। अब इसके ऊपर अपन ने जीएसटी लगा दिया, सपोज आई जीएसटी है, आई जीएसटी लेट्स से कि 10% जीएसटी मान लो अपन, है ना, तो 10% कितना हो गया 8,000 हो गया, 10% जीएसटी मान लिया हमने, ये हो गया 88,000। अब इसके बाद में मुझे जितना भी डिस्काउंट देना है अगले को, कि भाई नमन मेरा रेगुलर कस्टमर है या फिर मोहित से हमारी बिजनेस ट्रेडिंग होती रहती है, तो मैंने भाई आपको 8,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो लेस सीडी 8,000, है ना, मैंने आपको 8,000 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो केस डिस्काउंट है इसको गवर्नमेंट क्यों बियर करेगी, है ना, क्योंकि ऐसी कंडीशन में, अगर ऐसी कंडीशन में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है कि आप ये डिस्काउंट वगैरह माइनस करने के बाद में अगर आप उसके ऊपर जीएसटी या फिर जो कुछ भी चार्ज करते हो, देन दिस वुड बी अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, गवर्नमेंट के पास तो कम कम टैक्स जाएगा ना। समझो आप इस बात को कि आपने यहाँ पर ये 80,000 आया, अब आपने इसमें से सीडी माइनस कर दिया 8,000 का या 10,000 का केस डिस्काउंट दे दिया, फिर वैल्यू बची 70,000, और उसके ऊपर गवर्नमेंट को फिर आपने जीएसटी दिया, तो गवर्नमेंट को 7,000 जीएसटी मिल रहा है, जबकि इस सिचुएशन में 8,000 मिल रहा है, तो गवर्नमेंट क्यों सेक्रीफाइस करेगी टैक्सेस आपके अपने कस्टमर के साथ में रिलेशंस के लिए। समझ में आ रही है बात आपको? आर यू गेटिंग दिस? यस सर। है ना, तो हमने हमेशा जीएसटी कब कैलकुलेट करना है बेटा, पहले अपन सेल या परचेज है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद में जीएसटी लगाएंगे, और जीएसटी लगाने के बाद में फिर अपन उस पर जो भी केस डिस्काउंट देना है या लेना है। हाँ तो मतलब ये 88,000 का कैश डिस्काउंट निकलेगा ना? हाँ 88,000 पर 10% या 5% या जो भी कुछ है वो कंसीडर होगा, है ना, मतलब गवर्नमेंट, सॉरी हाँ जीएसटी तो ये है ना, जीएसटी तो पहले ही कैलकुलेट कर लिया, ये ना भाई, ये तो आप एक्चुअली अमाउंट रिसीव करो। चलो पहले यही देख लेते हैं आज। So this 8,000 rupees of case discount, है ना, और 80,000 rupees of case settlement। अब इसके जर्नल एंट्री बनाई आपने, मान लीजिए 1 लाख का गुड्स था, उस पर 20% आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, और 10% आप उसके ऊपर जीएसटी कलेक्ट कर रहे हो, और फिर उसके बाद में उस पर 8% आप डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो, यू आर सेलिंग। So ultimately you are going to receive what, that cash account debit 80,000, ठीक है, then after discount allowed 8,000, तो जो ओरिजिनल प्राइस ऑफ गुड्स है टू सेल्स कितना है 80,000, एंड टू आउटपुट आई जीएसटी कितना हो गया 8,000, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज 80,000, ठीक है, फिर उसके ऊपर 10% हमने जीएसटी लगाया, तो उसकी वैल्यू हो गई 88,000। सामने वाले से हमें 88,000 रुपीज लेना थे, लेकिन चलो ठीक है, अपनी जान पहचान वाला है तो उसको 8,000 का डिस्काउंट, ये 8,000 कंफ्यूज कर रहा है तो 4,000 मान लो, ठीक है, तो 88,000 का अमाउंट था, बट वी हैव ऑफर्ड अ 4,000 रुपीज ऑफ डिस्काउंट टू हिम, एंड 84,000 वी हैव रिसीव्ड, एंड 4,000 रुपीज डिस्काउंट वी हैव ऑफर्ड। मतलब जो डिस्काउंट अपन दे रहे हैं, देखो 100 बात की एक बात, जो डिस्काउंट केस डिस्काउंट अपन दे रहे हैं वो बिजनेसमैन का लॉस है, गवर्नमेंट का लॉस नहीं है। गवर्नमेंट तो जितने का बेच रहे हो उसके ऊपर पूरे पे टैक्स लेगी। समझ में आ रही है बात में? यस सर। है ना, मोहित क्लियर है बेटा? हाँ सर। ठीक, तो लाइक दिस परचेस में भी बताऊं मैं इसी को कि परचेस करते समय अगर परचेस की कंडीशन होती, चलो ठीक,
और कोई डाउट्स हो? करें कैश बुक कंटिन्यू? यस सर। देखें आपने और कोई ट्रांजैक्शन इसमें कैश बुक के? If any of the transactions you are finding, देखो कैश बुक में केवल कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री होगी, टू बी वेरी क्लियर। केवल कौन से ट्रांजैक्शन जिसमें सपोज इट इज डबल कॉलम कैश बुक, कैश विद द बैंक कॉलम। सो इफ द बैंक is involved or the cash is involved, then only will record. Are you able to understand this? Tell me the transactions. अपन transaction discuss कर लेते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो कुछ ट्रांजैक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। Meanwhile, if you are having some transactions, so that also you can just tell. Let's see the question number 7. Question number 7 in the NCERT, है ना? उसमें हम सारे ट्रांजैक्शन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम I would be writing here the transaction, ठीक है? I would be writing here the transaction। तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो दे रखे हैं कि उनको हम कैसे इसमें ट्रीट करेंगे, so this we would be solving। तो देखो सबसे स्टार्टिंग में क्या बता रखा है उन्होंने, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक ओवरड्राफ्ट, है ना? दिस इज द बुक ऑफ XYZ, cash book with the bank column। So first transaction is given, that is cash in hand and bank overdraft, you know? So this is given 7,500 and 3,500। so this is given, so though I have already explained you yesterday, you know, so this balance is given suppose on 1st April 21। so to balance we have cash balance is 7,500 and this is overdraft, that means to say that is a negative balance, okay? So bank balance we have 3,500। अब देखो अंतरिक्ष नमन होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3,500 ओवरड्राफ्ट इज गिवन और यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन बैंक या फिर इंटरेस्ट चार्ज। कभी-कभी क्या होता है कि इंटरेस्ट कलेक्टेड या इंटरेस्ट चार्ज, इस तरह के भी वर्ड लिखे हुए आते हैं, तो वर्ड से भी हम लोग समझ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि इफ द क्लैरिटी इज नॉट देयर, सो वी कैन इंटरप्रेट इट एनीथिंग एंड फर्दर वी कैन गिव एन एक्सप्लेनेटरी नोट कि भाई वी हैव इंटरप्रेटेड इट इन दिस वे, है ना? अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल केवल इतना लिखा हुआ है बैंक इंटरेस्ट, तो आप क्या समझोगे उसको? टेल मी। बैंक इंटरेस्ट 1000 क्या ट्रीट करोगे आप इसको? बैंक ने ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट लगाया है। हाँ, हम इसको इंटरेस्ट अलाउड ही मानेंगे, है ना? तो कभी-कभी क्या होता है कि कोई रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो दे रखी होती है उसके बेसिस पर भी वी कैन फाइंड इट आउट कि वेदर इट इज अलाउड और रिसीव्ड। सो जैसे बैंक इंटरेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, कंफ्यूजन होता है, आई अंडरस्टैंड कंफ्यूजन होता है, बट वो कंफ्यूजन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको पता नहीं है, वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं दे रखी, ठीक है ना? तो उसमें फॉल्ट आपका नहीं है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, है ना? उसमें फॉल्ट आपका नहीं है, उसमें फॉल्ट क्वेश्चन फ्रेमिंग का है, फॉर्मेशन का है, ठीक है ना? कि फॉर्मेशन गलत है, वहां पर वो चीज क्लियर करना चाहिए कि इट इज इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, बिकॉज वी
मतलब कि हम कोई मैजिशियंस नहीं है कि हमें समझ में आ जाएगा। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग द अकाउंट, और अकाउंट में अगर मान लीजिए ट्रांजैक्शन की क्लैरिटी नहीं होगी तो अकाउंट्स में है क्या, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट, डेबिट में लिखा तो एक्सपेंसेस, क्रेडिट में लिखा तो इनकम। सो अनलेस अनटिल, और आप प्रैक्टिकली समझो ना इस चीज को, आप थ्योरेटिकली क्यों देख रहे हो, प्रैक्टिकली समझो कि आपकी दुकान पे, आपके बिजनेस में एक अकाउंटेंट है, एक ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करना है और उसको ट्रांजैक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि एक्सपेंसेस है या इनकम है, तो वो क्या करेगा बेचारा, टेल मी। वो तो उसको एक्सपेंसेस मान लेगा या इनकम मान लेगा, या उसको जैसा लगेगा वैसा मान लेगा, और आप उसको बोल नहीं सकते कि आपने गलत किया। क्यों? क्योंकि उसको क्लैरिटी नहीं थी उसके ऊपर, है ना। सो दैट इज द थिंग। चलिए, तो ये हो गया। अब इसमें बैंक इंटरेस्ट है ना। सो दिस बैंक इंटरेस्ट 1000, क्या करेंगे इसको, ओवरड्राफ्ट है और इसके ऊपर अगर इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है सो इट इज एन एक्सपेंसेस, इट इज एन expenses. So by interest 1000. ओके, चलिए और कोई सा ट्रांजैक्शन हो आपके पास में तो वो देख लो। Now Rohan's a check deposited to the bank, है ना, due to this it will not affect, though it is an overdraft balance, but check deposited to the bank means a check received from Ram and deposited to the bank, so ultimately it is received to the bank. So to, है ना, so to Ram 3000 rupees, whatever a check is received from Ram and deposited to the bank. ठीक है। नाउ कुछ जीएसटी वाले ट्रांजैक्शन भी देख लो ताकि वो भी हमें समझ में आ जाए कि उसको कैसे रिकॉर्ड करना है। Sir, cash sales of 70,000 plus CGST and SGST 6% each. हाँ बोलो बेटा फिर से। Sir, cash sales of 70,000 plus CGST and SGST 6% each. ठीक है, गुड सोल्ड फॉर रुपीज 70,000 सब्जेक्ट टू आईजीएसटी 12%। तो ठीक है, दिस इज द सेल्स, so we are selling, so ultimately it is receipts, and ultimately it is receipts, and see students, it is receipts and the payment account, what we are receiving or what we are paying, है ना, what we are receiving and what we are paying, है ना। So this only we are just going to record, ठीक है। That is not the means of कि हम कैश बुक में लिख रहे हैं तो जो टैक्स रिसीव हुआ है that is not our income। वो सारी चीजें किसमें होंगी, लेजर में, ठीक है। Here simply we are recording कि what amount we have received, that is a substitute of learner, hopefully you are able to understand, ठीक है। So two cells 70,000, आउटपुट ऑफ आईजीएसटी कितना, 12%, कितना, ठीक है, like this, so this is merely a recording of transactions, so simply we can understand। और कोई transactions देख लो, question number 7, question number 8, Sir, purchased goods by check IGST 12%. हाँ ठीक है। Amount 20,000. So by purchase by check, so 20,000 rupees, and by क्या है, IGST SGST क्या है, so input 2400. IGST 12%, 2400, 2400. हाँ जी। और क्या वो डी स्टैंडर्ड का कुछ पूछ रहे थे ना नमन, डी स्टैंडर्ड का पूछ रहे थे ना। अच्छा, बिल डिस्काउंटेड हुआ था, तो पढ़ दो एक ट्रांजैक्शन, वो भी अपन देख। हाँ तो ठीक है, ट्रांजैक्शन है तो बताओ ऐसा, है ना। बिल ऑफ एक्सचेंज
discounted for rupees 4,000 from bank got dishonored and bank paid noting charges. चलो ये अभी तो नया है आपके लिए. चलो, a bill of exchange discounted for rupees 4,000 from bank got dishonored. तो ये एक्चुअली ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे इंक्लूड होना ही नहीं चाहिए, है ना? क्यों नहीं इंक्लूड होना चाहिए? क्योंकि एक इसका पूरा चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज. अब मुझे पहले आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और डिसऑनर्ड की थ्योरी बतानी पड़ेगी. देखो, जिन्होंने पढ़ ली है, जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है उसके बारे में, वो तो ठीक है, लेकिन बाकी के लिए तो चीज नहीं है कि बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाना होता क्या है. ठीक है, तो समझ लो इसको 2 मिनट के लिए. देखो क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल, बिल ऑफ एक्सचेंज जो है होते हैं एक प्रकार से, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक अलग चैप्टर पढ़ेंगे, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये एक प्रकार से रिटर्न प्रॉमिस होता है ना? ये रिटर्न प्रॉमिस होते हैं कि भाई मैंने मोहित को 10,000 रुपीज 4,000 रुपीज का गुड्स सेल किया. अब मोहित ने कहा कि मैं 3 महीने के बाद में भी पैसे दे दूंगा. ठीक है, तो मैंने मोहित से कहा कि भाई मोहित देखो, वो यारी दोस्ती अपनी जगह पर है, लेकिन बिजनेस ट्रांजैक्शंस अपनी जगह पर. तुम एक काम करो, 4,000 रुपीज में एक प्रोमिसरी नोट लिख दो मुझे, है ना, या बिल ऑफ एक्सचेंज बना दो. तो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट मतलब एक रिटर्न प्रॉमिस जो प्रॉपर एफिडेविट वगैरह होता है, और उसको अपन लीगल मैटर में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है ना? तो मोहित ने एक प्रॉमिस लिख दिया कि यस, I have purchased the 4,000 rupees of goods from you and after 4 months I will make the payment on time. और उसने साइन कर दिए, finally I have received. So that is the bill of exchange for me. Now this document comes under the negotiable instrument. This document comes under the negotiable instrument like check, hundi, draft, bill of exchange, promissory note, like this. तो अब अगर मान लीजिए मुझे अर्जेंट पेमेंट की रिक्वायरमेंट है, मैंने मोहित को बोला यार मोहित तू 3 मंथ के बाद में पेमेंट करने वाला है, अभी कर सकता है क्या? उसने कहा नहीं, अभी तो पैसा नहीं है. तो देन व्हाट विल आई डू? आई विल गो टू द बैंक. मैं बैंक के पास में जाता हूँ, बैंक को वो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करता हूँ कि देखिए सर ये बिल है, इसके ऊपर 4,000 रुपीज का पेमेंट 3 मंथ के बाद में हो जाएगा, अभी मुझे पेमेंट इमीडिएटली रिक्वायर्ड है. तो फिर बैंक क्या करता है कि बैंक उसमें से कुछ चार्जेस ले करके उसको डिस्काउंट कर देता है. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बिल को डिस्काउंटेड करवाना. ठीक है ना? तो 4,000 का बिल है, लेट्स से, तो बैंक उसके ऊपर 100, 200, 500 रुपए चार्जेस लेकर के बाकी अमाउंट मुझे पे कर देगा. लेकिन इस बात के लिए इंश्योर करना चाहेगा बैंक कि आफ्टर 3 मंथ बैंक इज रिसीविंग द मनी. इफ द बैंक इज नॉट रिसीविंग द मनी आफ्टर 3 मंथ, देन बैंक विल डिडक्ट द मनी फ्रॉम माय बैंक अकाउंट, है ना? और वो जो भी चार्जेस वगैरह है वो बैंक की इनकम हुई. और उसके बाद में अगर नोटरी ऑफिसर ने उस पर पेनल्टी चार्ज किया कि भाई बिल कैसे डिसऑनर्ड हो गया, है ना, तो ये सब चीजें अपन बाद में थ्योरी में पढ़ेंगे, है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज में. लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि बिल डिस्काउंटेड करवा लिया हमने, बाद में उसका पेमेंट नहीं हुआ, तो बैंक मेरे अकाउंट से उतना पैसा डिडक्ट कर लेगा. समझ में आ गई ये बात? यस सर. है ना? तो बाकी अपन इसको डिटेल में बाद में समझेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में. अभी के लिए अपन इतना समझ लें कि अब बिल एक्सचेंज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक 4,000 गॉट डिसऑनर्ड. सो डिसऑनर्ड होने की कंडीशन में हम हमारा बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज से डिक्रीज कर देंगे बाय, और हम डेबिट किसको करेंगे? हम डेबिट करेंगे उस पार्टी को जिससे पैसे लेना थे, लेट्स से मोहित, है ना. सो बाय मोहित, और बैंक अकाउंट में अपन क्या करेंगे? 4,000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस 4,000 से कम हो जाएगा. अगेन डेबिट, इसकी जरूरत क्या बनेगी? मोहित अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिकॉज अगेन मोहित विल बिकम अवर डेटर एंड द बैंक अकाउंट वुड बी क्रेडिटेड फॉर 4,000. मोहित ने नहीं दिए, अपने को देना पड़ेंगे. समझ में आ गई बात? यस सर. क्लियर है? ठीक. और बताओ कोई ट्रांजैक्शन? डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन फॉर रुपीज 5,000. मोहित क्या करेंगे बेटा, जल्दी से बताओ. नहीं, मोहित को बताने दो. डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन. मोहित, याशिका, वरुण, सुतेज, साहिल, पवन, नंदना, नैतिक. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट.
नहीं नहीं, मैंने जर्नल नहीं पूछा बेटा, इसमें कैसे लिखेंगे ये बताओ। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय डेप्रिसिएशन, एक मिनट, एक मिनट, कौन है ये? हु आंसर दिस क्वेश्चन? सर याशिका, I tried to answer like बाय डेप्रिसिएशन होगा ना। हाँ ठीक है, वेरी गुड याशिका, एटलीस्ट बेटा यू हैव रिस्पोंडेड। मुझे लगा बस कोई 2 ही लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, है ना। सो आई अप्रिशिएट कि एटलीस्ट यू आर लिसनिंग केयरफुली, याशिका, अप्रिशिएबल। एंड एनी अदर स्टूडेंट वुड लाइक टू ट्राई? मैं बार बार मोहित नमन इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे इन्हीं दोनों की आवाज आ रही थी, तो मुझे लगा यही 2 पढ़ रहे हैं, बाकी कोई है ही नहीं क्लास में। सो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन, और कोई बताएगा? हाँ ठीक है, बता दो नमन। हाँ गुड। तो क्योंकि देखिए ये कैश बुक है बेटा, ये कैश बुक है, तो इसमें केवल वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जिसमें या तो फिर कैश में इंटरफेयर हो रहा है या बैंक में इंटरफेयर हो रहा है ना। मतलब इधर कैश इज अफेक्टिंग और द बैंक इज अफेक्टिंग, ठीक है। सो इफ एनी ट्रांजैक्शन इज having no inclusion of cash or bank, so that transaction will not record in this, है ना। वो ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड ही नहीं होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन द क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सैलरी आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, है ना। 50,000 सैलरी वाज देयर, एक ट्रांजैक्शन में बता रहा हूं, मैं लिख देता हूं ट्रांजैक्शन बोर्ड पर। नहीं, उसको रिकॉर्ड देखो, एडवांस इंश्योरेंस वो डिपेंड करता है नमन कि वो ट्रांजैक्शन कैसे दे रखा है। अगर पेइंग बता रखा है कि देखो इतना लिखा हुआ है केवल कि एडवांस इंश्योरेंस, तो विल नॉट डू इट। बट अगर इफ इट इज रिटन कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस, तब उसको लिखेंगे, है ना। तो देखो दो चीजें सर वो किस में से जाएगा, कैश में से या बैंक में? भाई अगर कैश में पेमेंट किया तो कैश में से, बैंक और चेक से पेमेंट किया तो बैंक में से, ठीक है ना बेटा। तो देखो सर अगर ऐसा लिखा ना हो तो हम क्या माने, है ना। इंश्योरेंस जैसे लिखा हुआ है एडवांस इंश्योरेंस रुपीज 5,000, तो फिर इसकी एंट्री मत करो, क्योंकि ये एक इंफॉर्मेशन है, ट्रांजैक्शन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। आपने एट द एंड ईयर के लास्ट में या मंथ के लास्ट में एक स्टैटिक देखा, तो आपको पता पड़ा कि आपने जो इंश्योरेंस पेमेंट किया है उसमें से कुछ अमाउंट जो है आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया, तो दिस इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। बट अगर यही यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ हो, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस बाय चेक रुपीज 5,000, तब तो भाई आपको लिखना पड़ेगा बाय एडवांस इंश्योरेंस 5,000। तो देखिए आपको ये दोनों चीजें सेम लग सकती है, लेकिन दो अलग अलग चीजें हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है जबकि एक ट्रांजैक्शन है। ये एक इंफॉर्मेशन है एडवांस इंश्योरेंस की, एट द एंड आपके पास में जितना भी बैलेंस शो हो रहा था कि भाई इंश्योरेंस का बैलेंस शो हो रहा है 50,000, सो आउट ऑफ दैट 5,000 इज एडवांस, तो उसकी आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी है। और एडजस्टमेंट एंट्री कहां बनेगी? जर्नल प्रॉपर में। नहीं, मैं वही बोल रहा हूं ना कि इसकी जर्नल तो बनेगी, लेकिन जर्नल कहां बनेगी? जर्नल प्रॉपर में, क्योंकि ये एडजस्टमेंट एंट्री है ना, ये एडजस्टमेंट एंट्री है जबकि ये ट्रांजैक्शन है तो इसकी जर्नल कैसे बनेगी फर्स्ट वाले की? फर्स्ट वाले की जर्नल कैसे बनेगी बताओ जल्दी से कोई, है जी? एडवांस इंश्योरेंस पेड, फिर से सोचो बेटा। तो एडवांस इंश्योरेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, क्या बनेगा? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। एडवांस है ना, एडवांस में पेमेंट किया है ना,
हमारे लिए क्या है, असेट है ना। तो एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस फर्स्ट वाले की, जबकि दूसरे वाले की क्या नीचे बनेगी, इंश्योरेंस क्यों आया? ये नीचे जो दे रखा है इसकी नहीं सर, वो एंट्री टू इंश्योरेंस क्यों आया था नीचे? क्या बेटा, तो प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस क्यों आया था? टू इंश्योरेंस क्यों लिखा था? हाँ देखो ये कंसेप्ट मैंने समझाया था मोहित, और आई थिंक शायद उस दिन आप भी थे। नहीं आप online- हाँ है ना, आप ऑनलाइन है ना, आप ऑनलाइन अटेंड कर रहे थे मोहित। ठीक है, एक्सप्लेन यू बेटा, वो थोड़ा सा लॉन्ग कंसेप्ट है ना, अपनी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन दिस कि टू में इंश्योरेंस टू में क्यों आया, आई विल एक्सप्लेन यू दिस। ठीक है, सो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस बाय चेक, तो वो हो जाएगा एडवांस इंश्योरेंस या प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ अपन उसको एडवांस इंश्योरेंस करके 5000 रुपीज लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी नीड टू डू, देखो मैंने अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो डबल कॉलम पेज बुक के क्वेश्चंस थे वो करीब 6-7 क्वेश्चंस देखे, और 6-7 क्वेश्चन में से जो ट्रांजैक्शन डिस्कस करने लायक थे वो ट्रांजैक्शन मैंने डिस्कस कर लिए। आप भी देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी बुक में अगर 20 क्वेश्चन दे रखे हैं तो सारे 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, लेकिन ये देखो कि 20 क्वेश्चन में डिफरेंट ट्रांजैक्शन कौन से हैं। और देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ऐसे जो भी डिफरेंट या फिर अलग ट्रांजैक्शन, थोड़े यूनिक ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ना, उनको आप अपने प्रोजेक्ट के लिए भी मार्क कर लो कि भाई अपन अपने प्रोजेक्ट में इन ट्रांजैक्शन को इंक्लूड करेंगे, है ना। तो whatever the questions are there, select few transaction, और उससे ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 24 ही बनाना है, एक अपना एक क्वेश्चन बना दो और सॉल्व करो, है ना। टू क्वेश्चन फ्रॉम टू